Hi, welcome to the third session of the oscillation. In last session, we've studied about simple harmonic oscillators. We've discussed about the amplitude, frequency, and time period. Then we'll discuss about velocity and acceleration. In this video, we'll discuss about the topic linked with the uniform circular motion, and SHM means simple harmonic motion. And we'll discuss in detail. We have already discussed about it in detail in this video. Now, this is uniform circular motion. And now, what is a uniform circular motion? Let me draw a graph. This is the untidy circular motion. Sorry for this poor diagram. Let the radius of this be a. Let the radius be a, and let this body is moving in a circular fashion in anti-clockwise with the angular velocity omega naught. Let's assume this, right? And the center it's O here, right? Now, at let's say at time t equal to 0. Let's say the particle be here. At t equal to 0, let the particle be here. Now let me draw this. This is particle P. Let's say this is at t equal to 0. Now let the angular position with respect to the reference line OX, angular position with respect to the reference line OX makes the angle POX. Let this POX be pi angle, right? Now let at time t equal to t. Let's say this instant t equal to t. Let it come at the point Q. At the point Q, let the distance traveled with the omega naught velocity be omega t. This is omega t. So angle QOX be omega t plus phi. So this is the angular displacement, angular position of the particle at point Q. So we can say this undergone an angular displacement of omega t. This is called angular displacement from this point. This is omega t. Right. Now coordinates at the point Q is what? Now let me think. Let's check coordinates at the point Q. X coordinate be, this is the point equal to t. Let's x coordinate be what? A is a radius here. A cos omega naught t plus phi. Right? This is cos theta. And this y coordinate be a sin theta. That is a sin omega naught t plus phi. Here theta is omega naught t plus phi. Now we got the coordinates of the x and y. Now this as the particle moves on circular path, its perpendiculars from x and y axis moves as per the equation 1 and 2. It means x coordinate moves in this fashion a cos omega naught t, and y coordinate moves in the fashion a sin omega t plus phi. Now x equal to a cos omega t plus phi and y equal to a sin omega t plus phi. This is the individual equation of SHM. This was the equation of SHM, and again this is the equation of SHM. Now what we observe here, that means SHM can be described as the projected motion of the particle known as reference particle performing an appropriate uniform circular motion on the diameter of circle known as reference circle. Now means जो हमारा SHM हो रहा है, थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं. ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस सर्कुलर मोशन हमने इसी इंस्टेंट पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल लिया. x कोऑर्डिनेट जो बिहेव कर रहा है वो कर रहा है a cos ओमेगा t प्लस फाइव, और y कोऑर्डिनेट बिहेव कर रहा है a sin ओमेगा t प्लस. जो x कोऑर्डिनेट का मूवमेंट है बिल्कुल एक SHM की तरह है, और y कोऑर्डिनेट का मूवमेंट भी SHM की तरह है. लेकिन से हम x कोऑर्डिनेट की तरफ देखें तो x कोऑर्डिनेट कैसा है, पहले यहाँ पे इतना है, फिर कम होता चला गया, फिर जैसे सर्कल बॉडी मूव करती रहेगी, x कोऑर्डिनेट इधर गया, वापस इधर आएगा, ऐसे चलता रहेगा. ये बिहेव करेगा x कोऑर्डिनेट SHM की तरह. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी कैसे बिहेव करेगा, एक SHM की तरह. तो y कोऑर्डिनेट बढ़ता चला जाएगा a तक, वापस कम होते होते अब नीचे आता चला जाएगा माइनस a तक. तो x और y कोऑर्डिनेट इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट जो बिहेव कर रहे हैं वो SHM की तरह कर रहे हैं. इसका मतलब अगर एक रेफरेंस सर्कल की बात की जाए, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट जो है एक रेफरेंस सर्कल की तरह, तो ये एक SHM की बात कर रहे हैं. The radius of the reference circle is equal to the amplitude of corresponding simple harmonic motion. यानी कि यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या है, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा. Right. So now I can say that combining two SHM with a phase difference of pi by 2 and the same amplitude results in the uniform circular motion. यानी कि अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ पे सेम है, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, ये cos थीटा या sin थीटा, यानी फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय 2,
अगर मैं दो SHM, इफ आई कंबाइन टू SHM, अभी हम प्रूव किया जस्ट टू SHM, दो SHM है विथ फेज डिफरेंस पाई बाय टू एंड सेम एम्पलीट्यूड। हम कोई से भी दो SHM उठा लें, उनका एम्पलीट्यूड्स अगर सेम है और फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, राइट, फेज डिफरेंस क्या पाई बाय 2 है और ओमेगा टी है, तो ये क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन आ जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ जाएगा, राइट। अगर ओमेगा सेम है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर, अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, अगर हम इसके अगर पाई बाय 2 डिफरेंस को एम्पलीट्यूड को फर्क कर देते हैं तो हमें डिफरेंट मोशन मिलते हैं। अगर ये पाई बाय 2 से छोटा होता है या पाई बाय 2 से बड़ा होता है, मान लो दोनों का फेज डिफरेंस, इफ फेज डिफरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम पाई बाय 2, इफ फेज डिफरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम पाई बाय 2 or something else, then we will get an elliptical motion। एलिप्टिकल मोशन क्यों मिलेगा, एसएम तो हो ही रहा है, एक्स का कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट बड़ा है एक छोटा है, मतलब ये है कि सर्कल को कंप्रेस कर दो आप, वैसे मिल जाएगा, एक साइड वाई एक्सिस बड़ी हो जाती है और वाई एक्सिस छोटी हो जाती है, तो क्या होगा, सर्कुलर ना होकर एलिप्स हो जाएगा, राइट। और इस तरीके से हम डिफरेंट सिस्टम को कंबाइन करके डिफरेंट मोशंस हम निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली टू डायरेक्शनल में कोई मोशन होता है, वो एक्स कोऑर्डिनेट पे मोशन हो रहा होगा, वाई कोऑर्डिनेट में मोशन हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट का मोशन वाई कोऑर्डिनेट का मोशन मिला के हम एक टू प्लेन में मोशन निकाल लेते हैं। हमारे पास दोनों मोशन की इक्वेशन है सिस्टम की, कंबाइन करो डिफरेंट मोशंस को हम निकाल सकते हैं। यही लास्ट है, हमने ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। अगर इस रेफरेंस में हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी को देखें, मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसी भी इंस्टेंट पे, राइट, सो दिस इज क्यू इंस्टेंट पे पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, इस पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी इस इंस्टेंट पे, ए ओमेगा नॉट, राइट, मान लो। इसका मतलब मैं इसका अगर थीटा मानता हूँ इस कोऑर्डिनेट को, ये थीटा कितना कोऑर्डिनेट हो गया और पेंडिकुलर कितना हो गया, ए ओमेगा नॉट कॉस थीटा, राइट, ए ओमेगा नॉट कॉस थीटा हो गया। ये किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन मोशन हो रहा है, वही अगर हम ये हो गया वेलोसिटी। यही मैं अगर एक्सीलरेशन की बात करूँ, एक्सीलरेशन का आएगा इसके रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, राइट, एक्सेलरेशन रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि हम देखा था वहां पे नेगेटिव डायरेक्शन आता है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा, और एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका ये हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, राइट। और वैसे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, ये तो कोऑर्डिनेट हो गया, और ए ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा अंदर की तरफ, ए ओमेगा नॉट, और इसका कोऑर्डिनेट बाहर की तरफ वाई डायरेक्शन में आएगा, ए वाई नॉट स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि अंदर की तरफ हमेशा इसका एक एक्सेलरेशन होगा, सर्कुलर मोशन है क्योंकि, राइट, और इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ए ओमेगा नॉट साइन स्क्वायर थीटा, और एक वेलोसिटी कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ए ओमेगा नॉट कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर डिफरेंट सिस्टम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, राइट। अब सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल पेंडुलम हमने जनरली देखा है, हमारे जो घर में घड़ियां होती हैं उसके नीचे पेंडुलम लटकता रहता है, चलता रहता है। बहुत पुराने जमाने में घड़ियां हुआ करती थी, शायद अब तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा वो। कभी आप किसी रेलवे स्टेशन पे या कहीं देखोगे तो बहुत बड़ी घंटी होती थी, मतलब बहुत बड़ा क्लॉक लगा रहता है, उसके नीचे वो पेंडुलम मूव करता रहता है। बेसिक पेंडुलम बनाना है, एक थ्रेड लो, बहुत लाइट से थ्रेड लो, उसके नीचे मास लटका दो, उसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। इस सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है कि एक सिस्टम हो, अ सिस्टम ऑफ स्मॉल मासिव बॉडी, मतलब बॉडी का मास अच्छा खासा हो, स्मॉल मासिव बॉडी सस्पेंडेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल स्प्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। यानी कि अगर मैं एक रिजिड सपोर्ट लूं, से रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, हिले नहीं सपोर्ट, फिक्स है। जनरली आइडली केस में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आइडल केस में थोड़ा मूवमेंट तो होता ही है। तो एक आइडल केस बता रहा हूँ जिसमें जी ये स्ट्रिंग है, ये मासलेस हो जाए, लाइट हो जाए, बहुत ज्यादा लाइट है, मासलेस बोल देते हैं इसको, इनएक्सटेंसिबल, इसमें कोई इलास्टिसिटी भी ना हो इसकी, मतलब एक्सपेंड भी ना हो रहा हो, और इसके नीचे एक बॉब लटका दे जो अच्छे खासे मास का। आइडल केस में पेंडुलम ये होता है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं था, कुछ स्ट्रिंग होगी उसका कुछ मास होगा सी, और फिक्स हिंज है वो रिजिड भी जरूरी नहीं हो, ठीक है, और ये मास है, और ये मास बस सॉलिड मास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मास बॉडी है यहाँ ज्यादा वेट है या कम है, सॉलिड मास है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, जो कि एक स्ट्रिंग रिजिड फोर्स लटका हो, जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, लाइट है, इनएक्सटेंसिबल है, और जो मास है वो सॉलिड मास है, ठीक है। मान लेंगे सॉलिड मास m लटका हुआ है, और इस सेंटर से लटका होना जरूरी है, ऐसा नहीं हमने यहाँ से लटका दिया, यहाँ से कहीं और से लटका दिया, या इसका मास डिफर कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ l है, ये मास m है, ठीक है, और लटका हुआ है ये, मान लो इस पे इसका फोर्स एक्ट करोगे इस टाइम, ऊपर टेंशन T, नीचे फोर्स m, बस ये फोर्स बैलेंस होगा T इक्वल टू mg, दैट्स इट। अब जैसे ही इसको मैं थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ, इसे एंगल थीटा पे ले आता हूँ, देखते हैं कौन कौन से फोर्स इस पे एग्जिस्ट, ठीक है, ये मैंने हिंज बना लिया,
से दिस इज वाज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट कर दिया इसको, से इस पोजीशन पे आ गया। ये अगेन एक मास लटका हुआ है, ये मान लेते हैं थीटा एंगल, ये मान लेते हैं, so this is B, this is टेंशन T एंड ये मास नीचे एक्ट करेगा mg। ठीक है, बॉडी का मोशन कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट। अब यहाँ पे फोर्सेस लिखने की कोशिश करते हैं, यानी कि पेंडुलम सरका दिया, पेंडुलम सरकाने वाला पेंडुलम ने क्या क्या बनाया, सर्कुलर आर्क बनाई। पेंडुलम सरकाएंगे तो क्या बनेगा, सर्कुलर आर्क ही बनेगी, क्योंकि लेंथ L फिक्स है, लेंथ छोटी हो सकती, लेंथ फिक्स है, तो एक पॉइंट के अबाउट हम किसी लेंथ को मूव करते हैं तो क्या बनता है, सर्कल बनता है, राइट। तो ये पूरा घूमेगा, सर्कल होगा, हमने थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दिया, छोड़ेंगे तो बॉडी नीचे आएगी, किधर जाएगी किधर जाएगी, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब फोर्स देख ले पेंडुलम पे, पेंडुलम का जो मास लटका हुआ है फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, एक तो mg एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, टेंशन स्प्रिंग वो जो ये की तरफ एक्ट कर रही है, ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, T एंड mg, ये दो तरह की फोर्स एक्ट कर रहे हैं। टॉर्क की बात करें, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, ठीक है, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट की बात करते हैं, टॉर्क टाउ अबाउट ए पॉइंट, टी का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू द ए, देयरफॉर टॉर्क ड्यू टू वेट m, ठीक है। अब टॉर्क ड्यू टू mg निकाल लें, टॉर्क ड्यू टू टेंशन इज जीरो, टॉर्क ड्यू टू mg निकाल लेते हैं, अबाउट द लाइन पॉइंट ए इज व्हाट, mg इनटू l वेक्टर क्वांटिटी है, mg इनटू l वेक्टर क्वांटिटी, अब निकाल लें क्या बताएगा, ये आएगा माइनस l mg sin थीटा, राइट, ये आएगा थीटा ये। अब हमारा टॉर्क आ गया, टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज व्हाट, I इंटू अल्फा, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लें, यहाँ क्या होगा, मास लटका हुआ L डिस्टेंस पे, ml स्क्वायर हो गया, टॉर्क सीधे इनटू अल्फा व्हिच इज इक्वल टू माइनस L mg sin थीटा, ये आ गया। अब अल्फा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज d ओमेगा नॉट बाय dt, ये होगा d ओमेगा नॉट बाय dt, अब which is equal to d square theta upon dt square, right, अल्फा d ओमेगा नॉट बाय dt इक्वल टू d square theta by dt square, ये अल्फा हो गया हमारे पास, इक्वेट कर लें, दिस इज ml square, अल्फा इज व्हाट, d square theta upon dt square which is equal to minus l mg sin theta। कुछ इस तरह की क्वेश्चन आ गई, इसमें से जो चीज एलिमिनेट कर सकते हैं हम कर लें, m को एलिमिनेट कर सकते हैं हम, ठीक है, एक l को एलिमिनेट कर सकते हैं, d स्क्वायर थीटा अपन dt स्क्वायर। अब हम ये कह सकते हैं कि थीटा एंगल जो हमारा है बहुत छोटा एंगल है, ठीक है, साइन थीटा एंगल है पेंडुलम का, हम बहुत ऊपर लेके नहीं गए, बहुत छोटा एंगल है, अगर साइन थीटा बहुत छोटा एंगल है, साइन थीटा अगर बहुत छोटा एंगल तो हम कह सकते हैं इक्वल टू एक्स अपॉन, साइन थीटा बहुत छोटा एंगल है मान लेते हैं, दिस इज, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर होता है फॉर स्मॉल एंगल, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स अपॉन एल है, वेयर व्हाट इज एक्स वाज दिस डिस्टेंस, एक्स अपॉन एल साइन थीटा निकाल, माना है कि सर्कुलर होना चाहिए, लेकिन हम बहुत स्मॉल एंगल लेते हैं तो सर्कुलर है, तो स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, एक्स है, साइन थीटा भी निकाल लेते हैं, दिस इज एल लेंथ पेंडुलम, एल अपॉन एक्स, और साइन थीटा बहुत छोटा है तो थीटा की इक्वेट कर दिया। तो हमने यहाँ देखा कि थीटा की वैल्यू अगर मैं वो डाल देता हूँ, इस थीटा की वैल्यू में डाल देता हूँ एक्स अपॉन एल, देखते हैं क्या होता है। अब थीटा की वैल्यू डाल दी मैंने एक्स अपॉन एल, तो यहाँ आ गया एल इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि थीटा की वैल्यू डाल देते हैं हम एक्स बाय डी स्क्वायर एक्स बाय एल अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा, और जी साइन थीटा की वैल्यू क्या हमने थीटा मान ली, थीटा की वैल्यू क्या है एक्स बाय एल, इस थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स बाय एल। नाउ डी स्क्वायर एक्स बाय एल अपॉन डी टी स्क्वायर, एल इज नॉट द वेरिएबल हियर, एल तो फिक्स है, एल को बाहर निकाल ले, एल को बाहर निकालते ही एल अपॉन एल आ गया, यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर रह गया, यहाँ पे रह गया माइनस जी एक्स बाय एल, यहाँ से एल ही कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज व्हाट माइनस जी इंटू एक्स अपॉन एल, ये आ गया, यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। लास्ट टाइम हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी इस तरह की, यही मिली थी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, के क्या है यहाँ पे जी माइनस जी बाय एल, हमें लास्ट टाइम हमने जब ऑसिलेशन पढ़ा था तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी, इसमें था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस के एक्स, तो यहाँ के क्या हो गया माइनस जी अपॉन एल, वैसे से कुछ इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये कंपेयर कर लेते हैं हम, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग वाला सिस्टम के था, वैसे से इक्वेशन है ये, यानी कि ऐसे सिस्टम की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जी बाय एल है, तो जी बाय एल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, सॉल्व किया था हमने, ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या होता है, जी बाय एल वहाँ पे के क्या था ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर था, यहाँ पे जी बाय एल को हमने ओमेगा नॉट के स्क्वायर के इक्वेट कर दिया, ओमेगा क्या 2 पाई बाय टी,
10 इसका मतलब इसका स्क्वायर हो गया, यानी कि जी बाय एल जो है वो हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इसका मतलब टी क्या हो गया, टी को इधर ले जाते हैं, ये हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन, यानी कि टाइम पीरियड जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का पेंडुलम का जो आया है वो क्या आया है, टी 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, यानी कि यहाँ मास नहीं आया। बहुत अच्छी बात है कि मास पे इंडिपेंडेंट है, therefore टाइम पीरियड एंड सिंपल पेंडुलम is what, independent of मास, यानी कि मास कितना भी हैवी लटकाएंगे तो उससे इसके टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं वहां पे जब स्प्रिंग सिस्टम था वहां मास पे डिपेंडेंट था, या मास पे डिपेंडेंट नहीं। वहीं जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, तब अगर मान लो हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे स्प्रिंग मास सिस्टम को ले आते हैं, तब इसके ना एम और के की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। अगर मैं स्प्रिंग सिस्टम की बात करता हूँ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो हमने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है, और अभी हमने पढ़ा सिंपल पेंडुलम, इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, दोनों ही एसएचएम में थोड़ा फर्क क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये मास एम और के स्प्रिंग कांस्टेंट के पे डिपेंडेंट था, ये यहाँ पे इसकी लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई हम इसको किसी और प्लेनेट पे ले जाते हैं तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे कोई फर्क नहीं आएगा, प्लेनेट पे ले गए से मार्स पे ले गए, वहां पे ग्रेविटी चेंज आती है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे कोई फर्क नहीं आएगा, बट यहाँ पे फर्क आएगा, देयर इज अ चेंज, बिकॉज यहाँ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मास पे फर्क है, ठीक है, क्योंकि प्लेनेट पे गए तो मास और के तो वही रहेगा किसी बॉडी का, यहाँ पे ग्रेविटी चेंज होती है तो फर्क आ जाता है, ये मेजर फर्क आता है। और किसी प्लेनेट पे जाते हैं जहाँ ग्रेविटी अगर मान लो कि कम है, जी अगर हमारा लेस है, जी अगर हमारा कम हो जाता है तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ जाएगा मतलब ऑसिलेशंस, पेंडुलम घूम रहा है वो स्लो हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ से अगर मून पे जाते हैं अगर सिंगल पेंडुलम लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लोली करने हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात करें, अगर जी ज्यादा है टाइम पीरियड घट गया, ऑसिलेशन ज्यादा होंगे, यानी कि जो पेंडुलम क्लॉक है वो टाइम को गेन कर जाएगा। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में देखते हैं क्या बोलेंगे, हम टाइम गेन बोलते हैं, यहाँ क्या होता है, टाइम यूज कर जाएगा। यहाँ बहुत फास्ट चल रहेगा ऑसिलेशन, टाइम गेन करेगा। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेशन में डिस्कस अबाउट द डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, जो ऑसिलेशन करते करते एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसका ऑसिलेशन कम होता जाता है और फाइनली एक जगह जाके वो रुक जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेचुरल ऑसिलेशन पढ़ेंगे, फोर्स ऑसिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद रेजोनेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह के जो लास्ट के कुछ टॉपिक रह गए पढ़ लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करूंगा उसके बाद वाले वीडियो में, वो होगा कपल्ड ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन कंबाइन कर लेते हैं तो कुछ क्या इफेक्ट्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।